beautiful students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. और आज हम क्या कवर करने वाले हैं? Today we are working on the second part for the chapter nitric acid. For any doubts and concerns, you are always free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. Make sure आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो because pre boards काफ़ी लोगों के स्टार्ट भी हो चुके हैं और काफ़ी के स्टार्ट होने वाले हैं. So make sure that you are on top with your syllabus, and for any concerns you can always feel free to reach out to me. You can also reach out on Telegram. You can also reach out to me on Instagram or in the comment box below. So whatever is the most feasible option for you, you can definitely reach out. Now, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, so let's get started with today's session. आज के सेशन में हम in-text questions cover up करेंगे for nitric acid, and in the next part we'll be working on the uses of nitric acid and उसके tests. तो पूरा chapter खत्म हो जाएगा. So let's quickly start with today's session. अगर आपने पहले वाला पोर्शन पढ़ा नहीं है या उसमें कोई भी डाउट्स हैं, तो पहले आप इससे पहले वाला जो पार्ट है उसको देखो, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, तभी समझ में आएंगे. बिकॉज आई वोंट बी गोइंग इन अ लॉट ऑफ डिटेल because I've already discussed that. Now, let's get started with the first question. What is aqua fortis, aqua regia, and fixation of nitrogen? So let's look at the answer here. So aqua fortis क्या होता है? Let me just change the color here. So aqua fortis क्या होता है? So nitric acid is called aqua fortis. क्यों? क्योंकि aqua fortis means strong water. और नाइट्रिक एसिड को स्ट्रॉन्ग वाटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका पुराना नाम है. ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे ही मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता था. सो कर जाता है, सारे ही मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है. इसी वजह से इसको पहला जो नाम दिया था दैट वाज एक्वा फोर्टिस, व्हिच मेंट रॉयल वाटर. सो नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वाटर. Nitric acid is called aqua fortis. Aqua fortis means strong water. It is so called because it reacts with nearly all metals. Then second was aqua regia. Aqua regia means royal water. So जो aqua regia है, this is a specific concentration जिसमें आप nitric acid का और HCl का combination use करते हो. So concentrated nitric acid आप 1 part use करते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 parts. सो एक ऐसा काइंड ऑफ मिक्सचर डेवलप होता है जो कि आपके नोबल मेटल्स को भी मेल्ट कर देता है, मेल्ट एज एन डिजोल्व कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, उन पे भी रिएक्ट कर जाता है. सो दैट इज एक्वा रेजिया. Concentrated nitric acid 1 part by volume when mixed with concentrated hydrochloric acid 3 parts by volume gives a mixture called aqua regia, also known as royal water. और इसकी इक्वेशन ये रही. So you have HNO3 plus 3HCl gives you NOCl plus water plus 2 nascent chlorine. ठीक है. नाउ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. सो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब ये है कि जब कन्वर्जन होता है, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हवा में नाइट्रोजन घूम रही है, जब उसका कन्वर्जन होता है इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. यूजफुल नाइट्रोजन मतलब कि किसी ऐसे फॉर्म में कि या तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करके उनका फायदा हो सके या कोई और यूजफुल कंपाउंड बन सके in the soil is known as fixation of atmospheric nitrogen. So, the conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compounds in the soil is known as fixation of atmospheric nitrogen. Now, next question was, during thunderstorm, rainwater contains nitric acid. Explain with reactions. ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन है जो ड्यूरिंग लाइटनिंग टाइम होता है उसकी डिटेल. सो ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज, जब बिजली कड़कती है, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही बिजली मतलब इमेजिन कि कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता होगा ऊपर. सो इट इज़ अबाउट 3000, ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ऊपर जाता है. सो एज सुन एज लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट गिव्स यू NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. जब नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होती है इट गिव्स यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. उसके बाद ये NO2 पानी से और ऑक्सीजन से फिर से कंबाइन करता है एंड दैट गिव्स HNO3. सो लेट्स लुक एट द स्टेप्स. So during lightning discharge, the nitrogen present in the atmosphere reacts with oxygen to form nitric oxide. तो मतलब N2 plus O2 gives twice of NO. Nitric oxide further oxidizes, ठीक है. So it further oxidizes to nitrogen dioxide. NO के अंदर और ऑक्सीजन ऐड हो गया, so it gives you NO2. The nitrogen dioxide dissolves
डिजॉल्व्स इन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जो हवा में आपका वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं जो ऊपर, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है तो यू नो कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होंगे, तभी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब ये है कि बारिश का मौसम है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द एयर forms nitric acid which is washed down by the rain and combines with salt present in the surface of the earth. It is soil, ना कि salt. This is soil present on the earth. ठीक है, सो जो NO2 है वो वाटर वेपर्स के साथ हवा में प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन विद रेन एंड इट एड्स अप इनटू द सॉइल। Now, the third is ammonia is used in Ostwald process. सबसे पहला है give the source of the reactants used in the process, name the catalyst used, name the oxidizing agent used, what is the ratio of ammonia and air, why is quartz used in this process. चलो ठीक है, तो Ostwald process की सारी ही डिटेल्स हैं, so let's look at the whole answer. सबसे पहला पार्ट, अब मिक्सचर, क्या मिक्सचर यूज करते हैं हम, एयर और ड्राई। सो ड्राई एयर भी ड्राई यूज करोगे आप, ड्राई एयर एंड ड्राई अमोनिया का कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं 10:1 के रेशो में। सो 10 पार्ट्स आप लेंगे एयर। एयर हम क्यों लेते हैं 10 पार्ट्स, क्योंकि हमें तीन, ओसवाल प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों ही स्टेप्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर से आएगी। इसी वजह से एयर का रेशो हमें बहुत हाई चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। सो इसी वजह से वील बी यूजिंग ड्राई एयर इज टू ड्राई अमोनिया का रेशो 10:1 बाय वॉल्यूम। उसके बाद बी पार्ट में कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, प्लैटिनम गॉज यूज करेंगे। सी वॉज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा पार्ट था, सी। सी क्वेश्चन था नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन दिस प्रोसेस, सो दैट इज ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमोनिया एंड एयर, सो अमोनिया एंड एयर 10:1 का रेशियो है। ड्राई अमोनिया आप लेंगे 1 पार्ट, ड्राई एयर आप लेंगे 10 पार्ट्स। फिर लास्ट पार्ट था क्वार्ट्स क्यों यूज करते हैं, सो क्वार्ट्स इज एसिड रेजिस्टेंट, तो जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्वार्ट्स के ऊपर, इसी वजह से वी आर यूजिंग क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स लेयर्स में हम पैकअप करते हैं, क्यों, ताकि जब आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आ रही है वो पानी में डिजोल्व हो रही है तो यूनिफॉर्मली डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनता रहे। So quartz is acid resistant. When packed in layers, it helps in dissolving nitrogen dioxide uniformly in water, जिसकी वजह से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, सो जब ये डिजोल्व होगी तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। Second is in the preparation of nitric acid from KNO3, concentrated hydrochloric acid is not used in place of concentrated sulfuric acid. Explain why. ठीक है, दोनों पार्ट्स हम करते हैं। पहला पार्ट क्या है कि आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है। सो केमिकल इक्वेशन इज वेरी सिंपल, KNO3 plus H2SO4 at a temperature below 200 डिग्री सेल्सियस KHSO4 plus HNO3, नाइट्रिक एसिड बन गया। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वोलेटाइल एसिड। जैसे जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होगा वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा, उसके साथ साथ HCl भी चला जाएगा, क्योंकि HCl वोलेटाइल है, वो जल्दी ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड वी डोंट वांट दैट। तो इसके केस में क्या होगा कि जो आपका नाइट्रिक एसिड कलेक्ट होगा वो भी कंटामिनेटेड होगा, क्योंकि उसके अंदर HCl प्रेजेंट होगा। To avoid this, we are using sulfuric acid, क्योंकि sulfuric acid is a non-volatile acid. ठीक है, so concentrated hydrochloric acid cannot replace concentrated sulfuric acid for the preparation of nitric acid because hydrochloric acid is volatile and hence nitric acid vapors will carry HCl vapors. ठीक है, so now let's look at the third part. Concentrated nitric acid prepared in lab is yellow in color. Why? How is this color removed? तो इट इज येलो क्योंकि इसके अंदर आपकी NO2 प्रेजेंट होती है। सो कॉन्सोनेटेड नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड इन द लैब इज येलो इन कलर ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जो आपका नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है इन ट्रेसेस, जिसकी वजह से आपके पूरे नाइट्रिक एसिड को एक येलोइश शेड मिलता है, इट्स अ येलोइश कलर। ठीक है, दिस गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ पोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये आती कहाँ से है, तो जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड की वेपर्स ऊपर चढ़, मतलब ऐसे वेपर्स बने और फिर उसके बाद वो कलेक्शन जार में जाएंगे। सो जब वो वेपर्स बनते हैं कुछ 1 2 3 कुछ तो मॉलिक्यूल्स आपके वेपर्स के डिसोसिएट हो जाते हैं, HNO3 ब्रेक हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हीट भी तो मिल रही है बराबर।
तो जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक एसिड के खुद को ब्रेक कर लेते हैं, और जब वो खुद को ब्रेक करते हैं तो NO2 बन जाता है, एंड दिस NO2 कैरीज फर्दर, क्योंकि सब वेपर फॉर्म में है, इट कैरीज फर्दर इनटू नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से येलोइश कलर आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इस येलोइश कलर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो दो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये, उसमें पानी ऐड कर दीजिए। जब आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो पानी में NO2 डिजोल्व हो जाती है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है। सो डिसोसिएशन वापस से रिवर्स हो जाती है, करेक्ट। सेकेंड स्टेप ये है कि ड्राई एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसके थ्रू बबल करेंगे, तो वो भी आपके NO2 को उसमें से रिमूव कर देती है। सो लेट्स लुक एट द टू स्टेप्स। द येलो कलर ऑफ द एसिड इज रिमूव्ड इफ ड्राई एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू द येलो एसिड। The acid turns colorless because it drives out NO2 from warm acid, which further oxidize to nitric acid. Second step is by addition of excess water. So by addition of excess water, nitrogen dioxide gas dissolves in water, and thus the yellow color of the acid is removed. Okay, moving on to question number 5. Question number 5, first part. Nitric acid cannot be concentrated beyond 68% by the distillation of dilute solution of HNO3. State the reason. Second is, what is passive iron? How is passivity removed? ठीक है। सो जो पहला पार्ट है, डिड आई मिस समथिंग, अच्छा एक पार्ट आपका रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। So give reasons for the following. In the lab preparation of nitric acid, the mixture of concentrated sulfuric acid and sodium nitrate should not be heated very strongly above 200 डिग्री सेल्सियस। सो अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, पहली बात, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है विच इज़ वेरी स्टिकी एंड वो आपके बीकर पे स्टिक हो जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमूव इट, ठीक है। ऑल्दो दूसरी बात, आपका फ्यूल बहुत वेस्ट होगा। ऑल्दो आपका जो यील्डिंग है, मतलब जो नाइट्रिक एसिड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा है, बट फिर भी जो आपकी लॉसेज हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। So let's look at it. The temperature of the mixture of concentrated sulfuric acid and sodium nitrate should not exceed 200 degrees Celsius because sodium sulfate formed at higher temperature forms a hard crust which sticks to the walls of the retort and is difficult to remove. At higher temperature nitric acid may also decompose. तो जो अभी तक हमारी प्रॉब्लम थी कि नाइट्रिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स खुद को डिसोसिएट कर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे भी, तो अगर आप टेम्परेचर 200 से ऊपर करोगे तो ज़्यादा वेपर्स खुद को डिसोसिएट कर देंगे, तो आपका और ज़्यादा कंटामिनेशन होगा कि आपका जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कम नाइट्रिक एसिड है, ज़्यादा NO2 है। So this is the equation NaNO3 plus NaHSO4, ये 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, you get Na2SO4 plus nitric acid। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ था हमारा कि 68% कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हम क्यों नहीं उसे रेगुलर मेथड से क्यों नहीं उसे आगे कॉन्सेंट्रेट कर पाते। सो नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विद वाटर containing 68% acid. This mixture boils constantly at constant boiling point without any change in the composition. So constant boiling mixture होता क्या है? Constant boiling mixture एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे आके जो आपके मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है, मतलब उसके अंदर जितना नाइट्रिक एसिड है जितना पानी है वो एग्जैक्टली इक्वल रहता है एट दैट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जितने नाइट्रिक एसिड आपके वेपराइज हो रहे होंगे उतने ही कहीं ना कहीं से ऐड हो रहे होंगे या डिसोसिएट हो रहे होंगे। सो इट इज़ अ साइकिल जो चल रही है, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपका जो कॉम्पोजिशन है उस मिक्सचर का वो एग्जैक्टली सेम रहता है, यू डोंट सी एनी चेंज। सो दैट इज अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नाउ 68% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को अगर आप डिस्टिलेशन करते हैं फर्दर, इट स्टेज एट 68% बिकॉज ऑफ बीइंग अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। So let's look at it again. Nitric acid forms a constant boiling mixture with water containing 68% acid. This mixture boils constantly at constant boiling point without any change in its composition. At this temperature, the gas and the water vapor escape together. Hence the composition of the solution remains unchanged. तो जितने वेपर्स आपके पानी के निकलेंगे उतने ही वेपर्स आपके नाइट्रिक एसिड के भी निकल जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी कॉम्पोजिशन है उसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रिक एसिड का वो सेम रहता है। So nitric acid cannot be concentrated beyond 68% by distillation of dilute solution of HNO3. Now moving on to part B. Part B में पैसिविटी के बारे में था, व्हाट इज आयरन पैसिव और उस पैसिविटी रिमूव कैसे कर सकते हैं।
सो आयरन बिकम्स इनर्ट व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आयरन के ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर आ जाती है विच इज इनसॉल्युबल, तो ना तो वो रिएक्शन को आगे बढ़ने देती है एंड इट काइंड ऑफ स्टॉप्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द आयरन एंड नाइट्रिक एसिड. इसे कहते हैं पैसिव, आयरन बीइंग पैसिव. So iron becomes inert when reacted with nitric acid due to the formation of extremely thin layer of insoluble metallic oxide which stops the reaction. ठीक है. Passivity can be removed अगर आप surface को rub कर दें by sandpaper या फिर you treat with a strong reducing agent, तो वो layer remove हो जाती है and then the reaction can continue further. So क्या हुआ, passivity can be removed by rubbing the surface layer by sandpaper, आपने उसे rub करके हटा दिया, या फिर by treating with strong reducing agent or by treating with a strong reducing agent. I hope that makes sense. Now moving on to question number 6. So question number 6 is name the products formed when carbon and concentrated nitric acid is heated. तो जब इन दोनों को हीट करते हैं तो you get carbon dioxide, you get nitrogen dioxide, you get water. Then second is dilute HNO3 is added to copper. You get copper nitrate, you get NO and you get water, H2O. ठीक है. Now give two chemical equations for each of the following. Reactions of nitric acid with non-metals. Okay, so let's come up here. So nitric acid plus non-metal. So आप ले सकते हैं कार्बन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, आपको जो इक्वेशन अच्छी लगे नाइट्रिक एसिड के साथ आप वो ले लो. सो HNO3 के साथ आपने दोनों को रिएक्ट किया, कार्बन के साथ आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिला वाटर एंड यू गॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जब आपने सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो यू गेट H2SO4 प्लस वाटर प्लस NO2. ठीक है. उसके बाद नाइट्रिक एसिड शोइंग एसिडिक कैरेक्टर. अब इस एसिडिक कैरेक्टर वाले जोन में आप कोई से भी एसिड वाली प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड शो करता है आप वो यूज कर सकते हो. इसमें आई एम यूजिंग मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन. जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन होगा यू गेट सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली आपके बेस होते हैं बाय नेचर. ठीक है. सो बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. सो K2O प्लस एसिड मतलब कि HNO3 gives you KNO3 plus water. ZNO के साथ HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus water. Then C is nitric acid as an oxidizing agent. So P4, अब इसमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके बहुत 2-3 इक्वेशन दे रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप कोई सी भी यहाँ लिख सकते हो. सो P4 प्लस HNO3 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिया है मैंने, इट गिव्स यू H3PO4 प्लस वाटर प्लस NO2. Second case में I'm taking dilute HNO3. So Zn plus dilute HNO3 gives you ZnNO3 whole twice plus water plus twice of NO. ठीक है. कोई भी डाउट है, कंसर्न है, feel free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. Now moving on to question number 8. Write balanced equations and name the products formed when. Okay. ओके. सो सबसे पहली बात है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड. अब इसमें मैंने आई जस्ट नोटिस कि मैंने प्रोडक्ट्स के नेम्स नहीं लिखे हैं. सो वो आप खुद से ट्राई करें कि आपको नेम्स आते हैं नहीं आते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर डाल के पूछ सकते हो. बट इट इज़ वेरी इजी, डायरेक्टली बुक के इक्वेशंस हैं, कुछ नया नहीं है इसमें. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में नाइट्रिक एसिड ऐड होता है तो यू गेट NaNO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. B part is cupric oxide. So cupric oxide reacts with nitric acid. So CuO plus HNO3 gives you CuNO3 whole twice plus water. ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है वो है बेस नेचर में, प्लस HNO3 is acid, so gives salt plus water. Now zinc reacts with dilute nitric acid. So Zn plus HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus water plus NO. Concentrated nitric acid is heated. सो HNO3 को आप हीट करेंगे तो वो डिसोसिएट होता है, किसमें? पानी आएगा, NO2 आएगा और ऑक्सीजन आएगा. ठीक है. वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड. अब आपको नाइट्रिक एसिड में से इनकी फॉर्मेशन करनी है. आपको यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज प्रोडक्ट्स और आपको यूज करना है नाइट्रिक एसिड. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप रिएक्टेंट और क्या यूज करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ ताकि आपका प्रोडक्ट ऐसा आए, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स आए एक करके. सो लेट्स लुक एट इट. सो सबसे पहला है कि आपको बनाना है सोडियम नाइट्रेट. यहाँ सोडियम नाइट्रेट बनाना है, यहाँ HNO3 है, ये पता है. तो अगर आप इसे रिएक्ट करोगे तो किससे रिएक्ट करोगे? तो यू विल रिएक्ट विद NaOH प्लस NaNO3 प्लस वाटर. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि आपके आंसर्स मुझसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट अचीव करने के लिए सिर्फ एक मेथड नहीं है.
बट इफ़ यू वांट टू गेट योर इक्वेशन चेक्ड कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो सही है या नहीं, you can definitely put that in the comment and ask me to correct it. सेकेंड इज कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट आपको फॉर्म करना है, HNO3 यहाँ पे है. सो आप किससे बना सकते हो, ये है कॉपर का सॉल्ट. तो अगर कॉपर का सॉल्ट है तो यू कैन इजीली यूज कॉपर ऑक्साइड, जिसकी हेल्प से आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर. देन कमिंग ऑन टू लेड नाइट्रेट, आपको लेड नाइट्रेट फॉर्म करना है. यू हैव HNO3. तो व्हाट विल हैपन, यू कैन यूज लेड. लेड प्लस HNO3 गिव्स यू लेड नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2. देन मैग्नीशियम नाइट्रेट. मैग्नीशियम नाइट्रेट आपको फॉर्म करना है तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दीजिए. सो मैग्नीशियम प्लस HNO3 गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस. फेरिक नाइट्रेट आपको फॉर्म करना है. फेरिक नाइट्रेट के लिए आप आयरन से रिएक्ट कराएंगे तो भी काम हो जाएगा. सो HNO3 गिव्स वाटर प्लस NO2. उसके बाद मूविंग ऑन, you have aqua regia, so you have HNO3 plus HCl gives NOCl plus 2 ice of water and 2 nascent chlorines. ठीक है. Now moving on to question number 10th. Question number 10th is write equations for the following conversions A, B, C, D. Okay. So कॉपर से पहले पहुंचना है कॉपर नाइट्रेट, फिर कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड, और उसके बाद वापस से कॉपर. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग, आपको कॉपर से पहुंचना है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर से पहुंचना है कॉपर नाइट्रेट, तो आप HNO3 से रिएक्ट करा दो. सी, ये वाले क्वेश्चंस तब तो इजी लगते हैं जब आप उसी चैप्टर में सॉल्व कर रहे हो. ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम तब आती है जब आप सैम्पल पेपर में सॉल्व कर रहे हो, जिसमें आपको ये आइडिया नहीं लगता कि कौन से चैप्टर के में कौन से चैप्टर का रेफरेंस है. यहाँ डायरेक्ट पता है आपको रेफरेंस कि नाइट्रिक एसिड ही होगा, क्योंकि वही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम. करेक्ट. सो दीज क्वेश्चंस हैव टू बी प्रैक्टिस थरली, ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए कि आप क्या वेरिएशन कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो. एंड फॉर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली ऑलवेज हैव मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर्स. ठीक है. सो अब इस केस में आप कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यू गेट कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO. तो इसमें जो आपका आंसर ए है दैट इज नाइट्रिक एसिड. उसके बाद आप कॉपर नाइट्रेट से आपको कॉपर ऑक्साइड पहुंचना है, तो आप सिंपली इसको हीट करके डिसोसिएट कर सकते हो. सो यू एंड अप विद गेटिंग कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन. इसमें जो आपका बी आंसर है दैट इज दिस. देन आपको कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे आना है, और कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे जाना है, दोनों इक्वेशंस बतानी है. तो जब आप कॉपर ऑक्साइड से आपको कॉपर पे पहुंचना है तो यू कैन रिएक्ट इट विद कार्बन, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ऑक्सीजन रिमूव करना है उसमें से. सो आप कार्बन के साथ रिएक्ट करो तो यू एंड अप गेटिंग कॉपर प्लस CO2. तो इसमें जो आपका आंसर डी है दैट इज सी, कार्बन. देन फॉर सी पार्ट, आपको कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पहुंचना है. करेक्ट. सो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे पहुंचोगे, इसे आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी. सो यू कैन डायरेक्टली ऐड ऑक्सीजन बाय एडिंग ऑक्सीजन टू इट एंड हीट इट, तो यू गेट CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. सो इस केस में जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर सी इज ऑक्सीजन. Then moving on to question number 11, correct the following if required. HNO3 is a strong reducing agent. नहीं, oxidizing agent है. HNO3 is a strong oxidizing agent. Then NaNO3 gives NO2 and oxygen on heating. नहीं, NaNO3 will give you NaNO2 and oxygen on heating. Then constant boiling nitric acid contains 80% nitric acid by weight. नहीं, it contains 68% by weight. देन नाइट्रिक एसिड रिमेन्स कलरलेस इवन व्हेन एक्सपोज टू लाइट. नहीं, जब आपका नाइट्रिक एसिड इज एक्सपोज टू लाइट इट टर्न्स येलोइश इन कलर, बिकॉज वो डिसोसिएट हो जाता है एंड NO2 प्रोड्यूस होती है. NO2 इज अ रेडिश ब्राउन गैस जो कि आपके पूरे सोल्यूशन को येलोइश शेड देती है. सो इट टर्न्स येलोइश इवन व्हेन एक्सपोज टू लाइट. All right, students, so this is it for today's session. आज के session में we have covered up in-text questions of nitric acid, and in the next session we have a very short video coming up which would be on the uses and tests of nitric acid, and that will help us finish the chapter theoretically, and then हम exercise करेंगे उसके बाद. So if you're liking the videos, make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and help us move forward. Thank you so much for the wonderful response that you have been showcasing so far, and continue doing that. It really helps. So thank you so much, and we'll catch up in the next session.